So I'm going to start my today's class. So in the last class, we were discussing about angle between two lines in terms of distance. So you saw that basically we are deriving the formulas in terms of disease. So what was the formula? If you have a two line, just a small recap. If you have two lines making some angle theta, then the formula we derive, it was coming theta is equal to cos inverse how much? L1 L1 L2 is M1 M2 plus N1 N1 N2. N2. Yes, so it was simple formula. Cos inverse L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. If you know the disease of two lines, you can find the angle formula easily. You can find the angle between them by this formula. Okay. And then different cases are there. This proof was clear to all of you. We proved it by two methods. Yes. The proof was clear. So if theta is 90 degree, then you can find if lines are perpendicular, that means if theta is 90 degree, so your cos theta will become 0. So it means what? It was a condition. Now this arrow means both sided arrow. N1 N2 plus M1 N2 plus N1 N2 is equal to 0. Means if two lines are perpendicular, then this condition holds true. If this condition holds true, then two lines are perpendicular. So this arrow is called both sided arrow. It was a condition. So if somebody is asked that show that two lines are perpendicular, so you have to show this thing. You will find a disease and then find the value of disease. Putting the value here, if it is coming 0, it will become 0. Just for example, if somebody asking, show that axes are perpendicular to each other. So you know, axis में disease क्या होते हैं? Axis के disease क्या होते हैं? 1, 0, 0. If I am taking x axis and y axis का disease, 0 1 0. अब जब प्रोडक्ट करेंगे कितना जाएगा? 0 आ जाएगा. Quite obvious. First case. Similarly, two lines are parallel. Lines are parallel. That means theta will be how much? 0 degree. So now if it is 0, you can find the condition in terms of disease. So if theta is 0, अब theta 0 में क्या होगा? Sin 0 0 नहीं होगा, but sin theta will be how much? 0. है ना? Whenever we want to find some condition, we try to put 0 on the right hand side. So the condition will come very handy. Now sin theta की value we have calculated by using Lagrange identity. If you remember, it was coming L1 M2 minus L2 M1 whole square plus M1 N2 minus M2 N1 whole square plus N1 L2 minus N2 L1 whole square is equal to, right? It was the value of sin theta which we calculated yesterday by taking sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, and putting the 1 is L1 square plus M1 square plus N1 square into L2 square plus M2 square plus N2 square. Right? In yesterday class we have done this. So after solving, this was coming sin square theta. So if sin square theta is 0, so sin theta is 0. So I can put it equal to 0. And now you know, if sum of two positive quantities, three positive quantities is 0, sum of three perfect square is 0, it will be possible only, this is possible only if the individual quantities are 0, है ना? Because all are positive. Positive quantities का sum 0 है, तो कब होगा 0 ये? Only if L1 M2
minus L2 M1 is equal to 0 means its whole square is 0, or you can say whole square 0 means this 0. L1 M2 minus L2 M1 is 0. So this implies that you got one relation. How much? L1 upon L2 is equal to M1 upon M2. So this 0 and N1 M1 N2 minus M2 N1 is equal to 0. That means and third term is 0. Which sum of two positive numbers 0 only when the individual quantities are 0. Is it clear? Anil Yes, Rawat? sir. Yes, sir. So participants, Mayank Kumar, Yes, sir. so what I am saying here, क्या बता रहा हूँ मैं? सर अगर अगर साइन थीटा अगर 0 है सर, दैट मींस थीटा 0 है। और सर जब हम जो अगर थ्री स्क्वायर्ड वैल्यू, 3 पॉजिटिव वैल्यू है, अगर उनका सम 0 है तो उसका मतलब यही है कि इंडिविजुअल जो क्वांटिटीज हैं वो भी 0 होंगी सर। वो भी 0 होंगी, वो ही 0 होंगी तब 0 Yes, होगी sir. क्वांटिटी, मैं कह रहा हूँ। यस सर, यस सर। साइन थीटा 0 है तब थीटा 0 नहीं है, थीटा 0 है इसलिए साइन थीटा 0 है। ठीक, उल्टा बोल रहा है आप। अगर two lines are parallel then theta is 0. Theta is 0 means sin theta is 0. तो अगर sin theta 0 है तो we have this condition, this equal to 0. अब it is a sum of 3 perfect squares. The sum of 3 perfect square is 0 only if the individual terms are 0. तभी ये 0 हो सकते हैं। ऐसा क्यों? Why it is so? क्यों मयंक कुमार? कोई रीजन है इस बात का? सर क्योंकि सर वो सभी पॉजिटिव क्वांटिटीज होंगी। अगर हम वो तभी पॉसिबल है जब 0 और कोई वैल्यू होगी तो सर वो 0 से बड़ी होगी। क्योंकि बेसिकली कोई भी चीज 0 जब होती है, जब भी x प्लस वाई 0 होता है तो तब 0 होता है कि जब एक नंबर दूसरे का माइनस हो, है ना। 2 इज इक्वल भाई 2 प्लस 2 0, 2 आपका 0 कब होगा? जब दूसरा टर्म कितना हो? -2, है ना। तो द सेकंड टर्म शुड बी एडिटिव इनवर्स ऑफ द फर्स्ट वन। अगर x इक्वल टू माइनस वाई है तभी 0 होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 0 है, तो यहाँ पर दे कैन नॉट बी नेगेटिव टू ईच अदर, क्योंकि दोनों स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये क्वांटिटी 0 कब होगी? कि जब भी 0 हो सकती है जब x भी 0 हो और y भी 0, Y भी 0. है ना, क्योंकि दे कैन नॉट बी नेगेटिव टू ईच अदर, नेवर, because both are perfect square, both are positive number. So this sum will be 0 only when x 0 and y 0. Same thing is happening here. You have sum of 3 perfect square is 0. So the possibility only that the 3 terms individually should be 0. So when I put first term 0, I got first condition. I put second term to 0, I got second condition. And similarly, when I am putting a third N1 L2, similarly, putting N1 L2 minus N2 L1 whole square is 0 implies that N1 L2 minus N2 L1 is 0. This implies that L1 upon L2 is equal to. Okay. So we got, so that means we get, if I am merging all these three conditions, so I got L1 upon L2 is equal to M1 upon M2 is equal to
n1 upon n2. So this is the condition for two lines are parallel. When two lines are parallel, condition for two lines are. So this is also if and only if condition. है ना? This is also conversely also true. So it is if and only if. If this ratio holds true, then lines are parallel. If lines are parallel, this will hold. ये बताइए, बात क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. तो अगर आपको टू लाइंस दे रखी है, उनकी इक्वेशन दे रखी हो सपोज, और प्रॉब्लम हो कि शो दैट these two lines are parallel, so you have to show that this condition holds true. है ना? अब यहाँ पे इसका मतलब क्या, देखो when three things are equal also, ये तो कंडीशन हो गई. इससे मैं अगर जनरल निकालना चाहूँ तो we know that L1 upon L2 is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon N2. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? By the formula this can be written as, इसको अगर मैं इक्वेट कराऊं तो इसके भी इक्वेट करा सकता हूँ, है ना? इट इज अ प्रोपोर्शन रेशियो ऑफ थ्री क्वांटिटीज. दिस कैन बी इक्वल टू सम क्वांटिटी, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस आल्सो. ये इसके इक्वल होती है, मींस स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ पावर्स ऑफ डिनोमिनेटर. एंड यू नो हाउ मच दिस, ये कितना होता है? 1. 1. So you got plus minus 1 upon 1, 1. So that means what? You got L1 is equal to plus minus L2. M1 is equal to plus minus M2. इक्वेट करा दिया हमने इंडिविजुअल रेशियोज को. N1 is equal to plus minus N2. इसका मतलब क्या है कि DCs are same. भाई L1 is equal to plus minus L2 मतलब कि जो DCs आपका फर्स्ट लाइन का है और जिसके पैरेलल है वो क्या एक दूसरे इक्वल होंगे. माइनस से सिर्फ साइन का फर्क पड़ता है, माइनस. That means your DCs are same. ये कह सकते हैं रेशियो सेम आया मतलब DCs are same. ओके, ये अगर आपके पास DRs हो तो DRs के लिए भी ये फॉर्मूला हो जाएगा. इफ यू हैव डायरेक्शन रेशियोज, तो अगर आप पुट करेंगे तो डायरेक्शन रेशियोज में ये चीज आ जाएगी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. ठीक है, रेशियो में आप पुट करेंगे तो वो ये आ जाएगा. इज इट क्लियर? यस. Yes, sir. Now we have exercise on page 314. बुक तो आपके पास हार्ड कॉपी शेयर की थी मैंने, आपके पास है बुक की हार्ड कॉपी. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं. तो एक्सरसाइज 2 है आपका, ये पेज नंबर है 314. एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज है, अनसोल्व्ड प्रॉब्लम है. शो दैट the points zero, 7, 10, -1, 6, 6, form an isosceles here. Forms an isosceles right angled triangle. Right angled triangle. ये प्रॉब्लम है भाई. Show that पढ़िए जरा अंकुर साही, क्या लिखा है मैंने.
so that the point So नहीं, zero show that बढ़िया। yes sir वही वही लिखा है so that हाँ the point bracket 0 7 10 and -1 6 6 and हाँ। -4 9 6 from an isosceles right angle triangle. बताइए व्हाट इज आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होता है पता है? सर isosceles triangle जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं वेरी गुड। और राइट एंगल क्या होता है? और सर राइट सर वही तो होता है मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल और एक एंगल 90 डिग्री बने। गुड। तो ये आपका राइट एंगल Isosceles भी right आइसोस्केलेस भी है, इसका मतलब आपको ये इट मींस व्हाट, इट मींस यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच इज आइसोस्केलेस आल्सो। तो ये इधर तो राइट एंगल है ना, यस सर और ये टू साइड्स इसकी क्या है, इक्वल है। दे रहे हैं भाई, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो टू साइड्स आर इक्वल, तो डेफिनेटली लंब क्या बेस एंड Yes, sir. परपेंडिकुलर विल बी इक्वल। ये हाइपोटेनियस है ना, तो ये आपके पास 90 डिग्री एंगल है, टू साइड इक्वल है, तो हाउ मच दिस एंगल, हाउ मच दिस सर एंगल? 45 डिग्री यस, वेरी गुड, इट विल बी 45 डिग्री, 5/4 लिख सकता हूँ। तब ये शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स होंगे है ना, इन्हें कहीं मार्क करते हैं 0 7 10, कहीं पे भी आप 3 डायमेंशन XYZ प्लेन में मार्क करेंगे, तो व्हेन यू विल ज्वाइनिंग ऑल दीस 3 पॉइंट्स it will forms an isosceles right angle triangle. So what we have to show कि they are right angle triangle. Right angle triangle में क्या होता है? theta 90 ABC, हाँ है ना, और अगर टू साइड्स आर इक्वल है तो क्या बताओ कैसे शो करें इसे? इक्वल होगी बहुत AC और सिंपल AB। क्वेश्चन है। हाँ, फर्स्टली वी हैव टू शो AB पहले is equal डिस्टेंस to निकालेंगे सर हाइपोटेन्यूज रूट 2 टाइम्स होगा। रूट 2 टाइम्स होगा, मतलब सपोज A के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 0 7 10 जी, B के कोऑर्डिनेट मान लिए -1 6 6 एंड C के सपोज आई एम अज्यूमिंग 4 9 6 है, किसी को कुछ भी मान लो। फर्स्ट थिंग आई विल शो इट इज आइसोस्केलेस, तो आइसोस्केलेस के लिए आई विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB। इसका फॉर्मूला क्या बताया था? अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus यस, ये फॉर्मूला आपको पता है, इसका अंडर रूट स्क्वायर से आप सॉल्व कर लीजिए। इट इज कमिंग 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 एंड प्लस 4 स्क्वायर इज है ना 6 minus 10 4, 4 square is coming 16, so you got under root 18, so AB is 18. Now I will find AC, so AC will become now under root AC minus 4 minus 0 square plus 9 minus 7 whole square plus 6 minus 10 whole square, so it will become 16 plus 4 plus 16. Okay, so it is coming, गलत कर दिया क्या? AC कितना आ रहा है? AC -4 minus 0 4 square and 9 minus 7 2 square 4 and 6 minus 10 is 4. चलिए ये साइड, अच्छा चलो, तो ये आप क्या आ रही है? अच्छा AC नहीं तो BC को ला रहा हुआ इसमें, चलो 9 पॉइंट चेंज कर लेंगे, तो हमने आर्बिट्रेरी सपोज करा हुआ है, हो सकता है BC को ला, कोई बात। ये कितना आ गया आपके पास? 16 16 20 36, ये 6 आ गया, तो AC इक्वल नहीं आ रहा है, तो BC आएगा डेफिनेटली इक्वल। If I am finding now BC, so BC is how much? देखो BC -4 minus 1 है ना, -4 plus 1, so 3 square and then 9 minus 6 3 square plus 0 square, so it is coming under root 18. चलो तो BC आ रहा है तो इसको चेंज कर दो, कोई बात नहीं। BC को मैं क्या करूं, क्या कर दे भाई नेमिंग, इसे A कर दीजिए, इसे B
इसे सी। अब ठीक है, फिगर के लिए पॉइंट वही रखें आप, इसे ए बी सी कर दो, तो ए बी इक्वल टू ए सी है हियर, सो हियर दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी, टू साइड्स इक्वल implies that triangle Isosceles triangle. ABC is isosceles. और राइट एंगल के लिए इट शुड फॉलो द AB और BC के बीच का एंगल निकाल लेंगे, थीटा आ या तो जाएगा वो एंगल 90। वरना पाइथागोरस थ्योरम, ये भी सही कह रहे हैं क्योंकि आपने लेंथ निकाल लिया। देखो तो पाइथागोरस थ्योरम से हम चेक कर सकते हैं कि इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल तो पाइथागोरस थ्योरम सेज AC स्क्वायर शुड इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो जरा AC स्क्वायर इज हाउ मच 36, AB स्क्वायर इज 18 प्लस 80 है ना। तो आप एक तरीका तो एंगल निकाल लीजिए, थीटा इज इक्वल टू, तो एंगल आपका 90 आ जाएगा। यू नो द डिसीज ऑफ AB एंड BC, इसके हमें डिसीज निकाल सकते हैं क्योंकि पॉइंट्स पता है। लेकिन अगर आप यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द लेंथ, तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दैट विल बी इजियर, है ना। थीटा से भी निकाल सकते हैं आप और पाइथागोरस थ्योरम से भी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं also AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is coming 36 and AB square plus BC square, you know, implies that triangle ABC is right angled triangle. ये आपको प्रूव करना, समझ में आ गई बात? नहीं आसान क्वेश्चन था, कोई खास इसमें ऐसा वो नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए था राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। वन मोर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आपकी मुझे करानी है, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी होम असाइनमेंट से। 2 प्रॉब्लम्स जो है वो मैं करा रहा हूँ, बाकी प्रॉब्लम होम असाइनमेंट है। उन प्रॉब्लम्स को आप अपनी फेयर कॉपी पे करेंगे और जब सबमिट करेंगे कल आप 2 लोग, औरंगजेब और कौन था दूसरा लड़का, सर अनिल रावत। रावत, ये प्रॉब्लम्स जो है जो मैं भी आपको असाइनमेंट भी दूंगा वो भी करेंगे उसमें। ये प्रॉब्लम और करा दूंगा। फाइंड द रेशियो in which the coordinate planes कोऑर्डिनेट प्लेन्स कौन से हो गए आपके, XY प्लेन, YZ प्लेन एंड XZ प्लेन, है ना, इन्हें हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहते हैं। तो फाइंड द रेशियो इन विच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द लाइन joining the points -2, 4, 7 and 3, -5, 8। तो हमें रेशियो निकालना है भाई। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगी। अब इस लाइन को इन्होंने कहा कि सपोज करिए कि 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स कट कर रहा है, तो जाहिर है वो अलग अलग पॉइंट पे कट करेंगे। तो यू हैव टू फाइंड in what ratio they will be dividing this line. Is it clear? नहीं है clear? देखो सब, whenever you want to solve the problem, first thing is what? There are few steps. Everything has an algorithm. कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है मैथमेटिक्स में या रियल लाइफ में, फर्स्ट थिंग इज व्हाट? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। अगर प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई तो सॉल्यूशन तो आप सोच ही नहीं सकते। प्रॉब्लम सोचिए, देखिए प्रॉब्लम क्या है। दैट सेकंड थिंग इज सॉल्यूशंस, है ना, फाइंड द सॉल्यूशन, कि इसमें अगर ये पूछ रहे हैं तो हमें ये चीज निकालनी है। एंड थर्ड स्टेप इज राइट द सॉल्यूशन इन अ लॉजिकल वे, प्रॉपर वे। आपको सॉल्यूशन आता है, आप लिख कुछ और रहे हैं उल्टा सीधा, तो क्या होगा?
उससे भी समझ में तो नहीं आएगा, तो उसको एक्सप्लेन भी करना आपके सॉल्यूशन को, तो जो दूसरा है वो समझ जाए। प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब आपको मालूम है कि रेशियो निकालना है हमें, तो वी हैव ऑलरेडी अ फॉर्मूला ऑफ द रेशियो। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन आपको डिवाइड कर रही है, सपोज यू हैव 2 पॉइंट्स ए बी और पी क्यू व्हाटएवर, so I will assume that suppose it is dividing in the ratio. For the sake of convenience, I am taking, suppose it is dividing in lambda is to 1 ratio, है ना, for the sake of convenience। आप m1 m2 भी ले सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा फॉर्मूला इजी हो जाता है ना। ओके, Okay, sir. so I am assuming that a point is minus 247, थ्योरी में ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, let a be minus 247, b be a point 3 minus 5,8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आप थोड़ी थोड़ी लिखेंगे। एंड लेट अस सपोज इट इज डिवाइडिंग बाय अ पॉइंट p at the ratio lambda is to 1, whose coordinates are suppose x, y, z। Then we have already done the formula। Then x will be how much, तो आपको फॉर्मूला बताया था -2 into 1, -2 into 1, yes, plus lambda into 3, that means 3 lambda upon 1 plus lambda। म्यूट रखो भाई का सब लोग, इसकी इंटू इधर क्रॉस होता है, ये इसकी इंटू इधर। सिमिलरली y will be how much, 4 minus 5 lambda upon 1 plus lambda, and z will be 7 plus 8 lambda upon 1 plus lambda। So we got x, y, z। I want to find a ratio। मुझे यहाँ पे lambda की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना। Now because it is dividing by coordinate planes, तो मैंने सपोज फर्स्ट प्लेन ले लिया कि फर्स्ट प्लेन इज सपोज यू हैव एक्स वाई प्लेन, है ना। तो अगर एक्स वाई प्लेन इसको कट करेगा, सपोज यू हैव एक्स वाई प्लेन विच इज डिवाइडिंग, ये आपका कोई सपोज एक्स वाई प्लेन है, प्लेन ऐसे ही तो बनाएंगे आप। ये एक प्लेन है जो इस लाइन को कट कर रहा है इस पॉइंट से, और इसे डिवाइड कर रहा है। ये एक्स वाई, सपोज एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन पर क्या होता है, Z coordinate 0. yes, that is the point which is important to solve this problem। एक्स वाई प्लेन अगर इसे कट करेगा तो यू नो कि अगर एक्स वाई प्लेन इसे कट करेगा तो ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा, एक्स वाई प्लेन पे भी लाई करेगा। और अगर पॉइंट पी एक्स वाई प्लेन पर लाई करेगा तो जेड कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो ये जो पॉइंट है ये लाई करेगा ऑन द एक्स वाई प्लेन, जेड विल बी 0। आई विल गॉट लैम्डा हियर, देखो, है ना, यही कंसेप्ट है इसमें बस। सो इसी को रिपीट करना है आपको, तीनों मिल जाएंगे। सो हियर यू कैन राइट, यस बोलिए सर एक और बता दीजिए। देखो एक्स वाई प्लेन यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इन विच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। तो पहला मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन लिया, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन, तो ये आपकी एक लाइन थी, इसको एक्स वाई प्लेन कट कर रहा है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। तो जब ये एक्स वाई प्लेन इस लाइन को कट करेगा, है ना, एक लाइन आपके पास, आप ये सोचिए कि आपके हाथ में एक लाइन, एक धागा है, इट इज अ लाइन। इसको एक पेपर लीजिए, A4 शीट, जो पेपर उससे कट करा वो प्लेन है, अब वो एक्स वाई प्लेन है। तो जब वो एक्स वाई प्लेन उस लाइन को कट करेगा तो पॉइंट P कहाँ लाई करेगा, उस प्लेन पर आएगा नहीं आएगा, बोलिए। तो जब उस प्लेन पर आएगा तो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, z कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। ओके, हाँ, तो एक्स वाई प्लेन के लिए z कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये हमें बात पता है। सो फॉर एक्स वाई प्लेन z is equal to 0। तो जब z है ना, and point will be lying on the plane, it is understood। So that means जब z 0 है तो I will put the z coordinate। z coordinate क्या था, 7 plus 8 lambda upon 1 plus lambda is equal to 0। This implies that 7 plus 8 lambda is 0। So that means lambda is equal to -7 upon 8। तो ये आपका रेशियो आ गया लैम्डा का, 7 upon 8 इज द रेशियो। तो जो रेशियो होगा -7 upon 8 is to 1, है ना।
So it means what I can say, so that means xy plane जो कट कर रहा है lambda is to 1 के रेशियो में, it will be dividing in the ratio of how much, -7 into 8. So that means xy plane divides the line in the ratio -7/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -7:8. Now for yz plane, for yz plane, अब मैं अगर yz plane ले लूं, then what will happen, you know, x is equal X. to 0. x कोऑर्डिनेट 0 होगा. अब x को 0 पुट कर दीजिए आप. x क्या था, -2 + 3 लैम्डा. So this implies that -2 + 3 lambda upon denominator is 0. So that means this is equal to 0. So this implies that lambda is equal to 2:3. Similarly, for xz plane, तीन ही प्लेन होते हैं भाई, xy, yz, xz. For xz plane, your y coordinate is 0. So this implies that y is means 4 - 5 lambda is 0. So it will be in the ratio 4:5. 4/5/1 and 4:5. So in this way you can find all these. Clear अभी problem is? इससे बस concept क्या था आपका, देखो it was the key point. हर प्रॉब्लम में की पॉइंट होता है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. इस प्रॉब्लम का की पॉइंट ये था कि आप कोऑर्डिनेट प्लेन जो सोच रहे थे तो उसमें आपको ये बात का ध्यान रखना था कि जो भी मैं कोऑर्डिनेट प्लेन लूंगा उसमें एक कोऑर्डिनेट कोई 0 होगा. तो जो कोऑर्डिनेट 0 होगा उसको हम इक्वेट करा देंगे तो उससे हमें लैम्डा निकल जाएगा, है ना. ये इस प्रॉब्लम का की पॉइंट है. इज इट क्लियर? Yes sir. हाँ, good. अब 4 प्रॉब्लम्स होम असाइनमेंट में कौन सी करनी है? बता रहे हैं यार अभी. एग्जाम्पल 1, 3, 6, 7. ठीक, और आई थिंक 5 भी है, नहीं 5, 1, 3, 6, 7. These are home assignment problem. Page number same 313, book 314 सॉरी. बुक की सॉफ्ट कॉपी आपको शेयर की हुई है, जिसके पास बुक नहीं है वो वहां से देख सकता है. ये 4 प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व करेंगे, आपस में डिस्कशन करके सॉल्व करें चाहे तो. देखो मैथमेटिक्स में ग्रुप स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रुप स्टडी का मतलब ये कि आप 2-3 स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप बनाएं और डिस्कशन करा करें. डिस्कशन फालतू का नहीं, क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी कब खुलेगी और ये कब होगा वो कब होगा. डिस्कशन मतलब आपका जो पढ़ाया जा रहा है इसको डिस्कस करें आपस में. जैसे प्रॉब्लम्स 4 दिए हैं, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे और आपस में अपने आंसर मैच करेंगे, क्या आंसर आ रहा है. सब में कंसेप्ट लगे हुए हैं यही सब, जैसे मैंने प्रॉब्लम कराई है इसको आप सोचेंगे और फिर सॉल्व करेंगे और इसको फेयर कॉपी में करना है. ओके सर Okay, सबको sir. करना है ना सर? है जी. सबको करना है ना सर ये असाइनमेंट? असाइनमेंट सबको करना है, कॉपी भी सबको बनानी है फेयर. मैं अभी दो जिससे मांगूंगा रैंडमली उसकी कॉपी रेडी होनी चाहिए. कल 2 लोग शेयर करेंगे, औरंगजेब एंड रावत. फिर मैं किसी और से लूंगा तो वो कॉपी पूरी होगी शुरू से लास्ट तक. जिस दिन मैं कहूँ भी कल आपको कॉपी शेयर करनी है, इट मींस यू शुड हैव योर नोट्स राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट लेक्चर टू द लास्ट लेक्चर. ठीक है, बाद में आप देंगे, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा. आपके हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे. आपको भागना नहीं पड़ेगा इधर उधर, क्या नोट्स दे दो जरा, कैसे पढूं क्या करूं. चलो, सो ये प्रॉब्लम्स करेंगे आप इसमें से. नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. चलिए ये अब मैं कंसेप्ट, क्योंकि टाइम कम है मैं आज पूरा कर नहीं पाऊंगा, क्लास आउट हो जाएगी, टाइम आउट हो जाएगा. सो आई विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम टुमारो. ठीक है, टाइम ज्यादा है नहीं ऐसे भी, नेक्स्ट क्लास है. तब तक आप इसे सबमिट कर. टुमारो मींस नाउ वी हैव नेक्स्ट क्लास ऑन
ऑन I think next Tuesday. Tuesday. आई थिंक अभी तक आपका थिंक ही चल रहा है. यू शुड बी श्योर. ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 क्लास होती है. ठीक है. हाँ चलिए फिर कल आप सारी सबमिट करें यूनिवर्सिटी बाकी कब तक खुल रही है? ओके. यूनिवर्सिटी खुलने का कुछ पता नहीं है अभी. Sir. ठीक है. दुआ करिए कि जल्दी से खुल जाए, लेकिन जी अभी कुछ सर। हालात नहीं है. हाँ. आप खुद अपडेट रहते होंगे मुझसे ज्यादा कि क्या न्यूज़ेस आ रही हैं अभी थर्ड वेव के बारे में. चाइना में वुहान सिटी फिर से लॉकडाउन हो चुका है. यू नो दिस थिंग. पता है ये बात? क्यों? यस सर. Sir. हाँ हाँ. यस सर।